Welcome, my lovely students, to another important session on surds and indices on Mathological. If you have not already subscribed to the channel and you are liking the content, then make sure to subscribe to it as well as press the bell icon. You can also join the Telegram channel Mathological and can message me on Telegram at ADITYAKT. I will also soon make a WhatsApp channel and I will add the description for that channel in the description of the video. ठीक है, तो चेकआउट कर लेना व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने के लिए. So first question of this session: if a and x are natural numbers such that a to the power x plus a to the power x plus 1 plus a to the power x plus 2 is always divisible by 14, then find the minimum possible value of a. So a to the power x plus a to the power x plus 1 plus a to the power x plus 2, that is always divisible by 14. Fine. क्या कर सकते हैं हम इसमें से? वी कैन टेक a to the power x as कॉमन, तो ले लेते हैं a to the power x को कॉमन. बच जाएगा अंदर 1 प्लस a to the power x प्लस 1 था, यानी कि a to the power 1 बच जाएगा प्लस a to the power 2 बच जाएगा. तो 1 प्लस a स्क्वायर, दैट विल बी इनसाइड द ब्रैकेट a to the power x इनटू 1 प्लस a स्क्वायर, एंड दिस इज डिविजिबल बाय 14. 14 से डिविजिबल है. इफ यू टेक a इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमें एक मिनिमम पॉसिबल वैल्यू चाहिए, तो सबसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट करते हैं. कोई ऐसा पैटर्न यहाँ पे दिख तो नहीं रहा है स्ट्रेट अवे. सबसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट करते हैं और नेचुरल नंबर्स हैं तो स्मॉलेस्ट वैल्यू विल बी इक्वल टू 1. सो फॉर a इज इक्वल टू 1, a टू द पावर x विल बी 1 ओनली, बिकॉज 1 की कोई पावर होगा 1 ही आने वाला है, और दिस ब्रैकेट विल बी 1 प्लस a विच इज 1 प्लस a स्क्वायर विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1, सो दिस विल बी इक्वल टू 3. तो a इज इक्वल टू 1 तो पॉसिबल नहीं है. इफ वी टेक a इज इक्वल टू 2, then a to the power x becomes 2 to the power x, है कि नहीं? 2 to the power x बन जाएगा. ठीक है, 2 to the power x multiplied by 1 plus 2 square, 2 square. So this is 2 to the power x into 1 plus 2 plus 4, so 7. 2 to the power x into 7, and we know that x is also a natural number. Being a natural number, x will be greater than or equal to 1. तो ये बात तो पक्की है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ठीक है, तो अगर हमारा x जस्ट इन केस इक्वल टू 0 होता, यहाँ पे तो नहीं होगा, बट अगर x 0 होता तब फिर 2 टू द पावर x हमारा हो जाता 1 और 1 इंटू 7 हो जाता 7, तो फिर 14 से डिविजिबल नहीं होता. बट सिंस x कैन नॉट बी इक्वल टू 0 बिकॉज x इज अ नेचुरल नंबर, तो x का वैल्यू 1 होगा. तो दिस इन एनी केस विल बी, अगर हम 2 की पावर 1 को इसमें से रिमूव कर दें तो दिस विल बिकम 2 टू द पावर x माइनस 1 into 2 to the power 1 into 7. कोई दिक्कत इसमें, because x minus 1 plus 1 is x only. ठीक है, now this is 14, this value is 14, तो अब हमारा रिजल्ट आ गया 14 into 2 to the power x minus 1, और ये 2 to the power x minus 1 क्या है? This is an integer because नेचुरल नंबर है x हमारा, so this value will be an integer, so this will be a multiple of 14. This will definitely be a multiple of 14. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे क्या था कि अगर x इक्वल टू 0 हो सकता, यानी कि if instead of natural number it was given that x will be a non-negative integer, in that case x 0 भी हो सकता था, तो फिर हमारा सॉल्यूशन मिनिमम पॉसिबल वैल्यू फॉर ऑल केसेस would not have been a is equal to 2. In that case would not have been a is equal to 2. But since x is a natural number, तो for sure we are certain that it will always be divisible by 14 because always is there. ठीक है, कभी कभी नहीं, हमेशा होना चाहिए. क्लियर है? So since x is a natural number, that is why a is equal to 2 will be the answer. This will be the answer. अगर x नेचुरल नंबर नहीं होता तो फिर a is equal to 4 पे जाते हैं हम, because 4 is also multiple of 2, और वहां पे ये प्रॉब्लम नहीं आता. ठीक है, वहां पे फिर 1 प्लस नहीं वहां पे भी प्रॉब्लम आ जाता, बिकॉज 1 प्लस 4 प्लस 16 21, तो वहां पे भी हमें एडिशनल पावर चाहिए होता, तो वहां ही प्रॉब्लम आता. ठीक है, तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है उस केस में, फिर हमें सोचना पड़ता, उसके अलावा और भी वैल्यूज को टेस्ट करना पड़ता. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. फिलहाल इन दिस केस द आंसर इज इक्वल टू 2. अच्छा, एक छोटी सी बात और है कि देखो, किसी भी केस में हमें इस पे तो डिपेंडेंट रहना ही पड़ेगा. अगर इन जनरल हम बात करें, एक सेकंड, इस पे इन जनरल स्ट्रक्चर की बात करें, दिस इज a टू द पावर x into 1 plus a स्क्वायर, एंड इफ सब नंबर इज अ डिविजिबल बाई 14, तो नंबर हमारा इवन होना चाहिए, बिकॉज 14 इवन है, तो उसका जो मल्टीपल है वो भी इवन होना चाहिए. एंड 1 plus a स्क्वायर, ये तो हमेशा ही ऑड होगा, दिस विल ऑलवेज बी ऑड इररेस्पेक्टिव ऑफ कि a की वैल्यू क्या है. a इवन होगा तो भी ऑड होगा, बिकॉज इफ a इज इवन 1 plus a स्क्वायर में, if we take a as a even number, if a is even,
ठीक है, इवन को शॉर्ट में ई से लिखते हैं, तो इफ ए इज इवन तो ए इवन है, ए स्क्वायर भी इवन होगा, इवन प्लस इवन इवन आएगा, बट 1 ऐड करते ही ऑड हो जाएगा। इफ ए इज ऑड तो ए ऑड है, ठीक है, जीरो नहीं है, ऑड लिखा हुआ है, और ए स्क्वायर भी ऑड है, तो ऑड प्लस ऑड को तो इवन बना दोगे, बट जैसे ही उसमें 1 ऐड करोगे अगेन दिस विल बी ऑड ओनली। सो 1 प्लस ए स्क्वायर विल ऑलवेज बी ऑड, सो दिस इज ऑलवेज ऑड, सो दैट इज वाई ए टू द पावर एक्स मस्ट बी इवन। तो जो ए की वैल्यू है वो इवन नंबर ही होगा, ए शुड बी इवन, है कि नहीं? तो फिर x हमें पावर जो है वो डेफिनेटली इन एनी केस नेचुरल नंबर x का होना पड़ेगा। अगर x नेचुरल नंबर नहीं होगा तो फिर तब फिर ऑलवेज डिविजिबल बाई 14 वाला केस तो हमें मिलेगा ही नहीं, बिकॉज जैसे ही x इक्वल टू 0 पुट कर दोगे बाकी सब कंडीशन खत्म हो जाएंगी, यानी कि हमारा नंबर कभी भी डिविजिबल बाई 14 नहीं हो पाएगा, बिकॉज इवन ही नहीं हो पाएगा x इक्वल टू 0 पे। तो ठीक है, सो जस्ट इन केस, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस में हम इन सब प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन तो डिफरेंट है, आगे कहीं यूज करेंगे। सो दिस क्वेश्चन इज 5 टू द पावर x is equal to 0.125 to the power y is equal to 10 to the power 3z, then what is the relationship between x, y and z given that they are non-zero real numbers? अब ऐसे क्वेश्चंस में बहुत सारे लोगों को घबराहट होता है, टेंशन होता है, कैसे सॉल्व करोगे? देखो, हमेशा ऐसे क्वेश्चंस का एक डेफिनेट पैटर्न है। पैटर्न क्या है? हमें क्या गिवन है ये समझो, नोन से अननोन की तरफ जाएंगे, ये बातें मैं बार बार कहता हूँ, नोन से अननोन, नोन क्या है हमें? 5 को तो हमें जानते हैं ना, हम सब जानते हैं 5 क्या है। 5 वी नो, 10 वी नो, 0.125 वी नो, बट द रिलेशनशिप वी डोंट। तो 5 के बारे में पता है, 0.125 क्या है? दिस इज 1/8, दिस इज 1/8। और अगर हमें 10 बनाना है तो 10 क्या है? 10 विल बी इक्वल टू 5 इंटू 2। 10 को बनाने के लिए 5 भी चाहिए और 2 भी चाहिए, तभी तो बनेगा 10। तो 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2। अब 5 तो समाउ यहां पे गिवन है, बट 2 कहीं पे भी दिख नहीं रहा है, बट यहां तो दिख रहा है ना 1/8 में। 1/8 इज व्हाट? 1/2 क्यूब। सो दिस इज 2 टू द पावर -3, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर -3, तो 0.125 इज 2 टू द पावर -3। तो हमें ये रिलेशनशिप बनाना है अपना, 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2। इसके लिए थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी। ओके, तो 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 0.125 टू द पावर y एंड दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3z। और मान लिया कि दिस इज इक्वल टू सम वैल्यू k, दिस इज इक्वल टू k। ओके, ये वैल्यू है k के बराबर, एंड इफ दिस इज इक्वल टू k तो 5 क्या हो जाएगा? 5 टू द पावर x k है, तो 5 विल बी k टू द पावर 1/x। ओके, 0.125 दिस विल बी k टू द पावर 1/y, बट 0.125 खुद क्या है? 2 टू द पावर -3 है, 2 टू द पावर -3 है, यानी कि 2 टू द पावर -3 इज इक्वल टू k टू द पावर 1/y। तो -1/3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 टू द पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि हमें अल्टीमेटली 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 बनाना है। तो 2 टू द पावर -3 to the whole power -1/3, this will be equal to k to the power 1/y to the whole power -1/3, and hence यहां से हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा? that 2 is equal to k to the power -1/3y, k to the power -1/3y, and 10 to the power 3z is equal to k। तो यहां से हमें मिल जाएगा 10 is equal to k to the power 1/3z, 10 is equal to k to the power 1/3z। इज दैट क्लियर? बस एक्सप्रेशन बना दो अपना। तो 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2, और 10 है हमारा k टू द पावर 1/3z, तो k टू द पावर 1/3z इज इक्वल टू 5 इंटू 2। 5 है k टू द पावर 1/x इंटू 2, और 2 है k टू द पावर 1/3y, सॉरी -1/3y। So powers add up हो जाएंगे, this will be k to the power 1/x minus 1/3y, and that is equal to k to the power 1/3z. So definitely 1/3z will be equal to 1/x minus 1/3y. Okay, so यहाँ से हमारा आ जाएगा 1/x will be equal to 1/3y plus 1/3z. बट ऐसा तो कोई एक्सप्रेशन गिवन नहीं है। हाँ, ऑप्शन बी गिवन है 3/x इज इक्वल टू 1/y प्लस 1/z, तो यही आंसर होगा। 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, दिस विल बिकम 3/x इज इक्वल टू 1/y प्लस 1/z। क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में कभी ऐसा भी गिवन हो सकता है कि इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लेते हैं। 3/x इज इक्वल टू y प्लस z अपॉन yz। ओके, सो दिस बिकम्स 3yz is equal to y plus z by x, or we can say that y into z
इज इक्वल टू वाई प्लस जेड बाई 3x। तो कभी कभी इस क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन पूछता है कि y इंटू जेड की वैल्यू क्या होगी, या y प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी, या x की वैल्यू क्या होगी। तो डिपेंड करता है, एक्सप्रेशन हमारा यही आएगा, रिजल्ट यही आएगा, इसी रिजल्ट से हमें फिर वो फाइनल आउटकम निकालना पड़ेगा अगर कुछ और पूछता है क्वेश्चन तो। ठीक है, अप्रोच यही रहेगा, सारा अप्रोच यही रहेगा, सब कुछ यही रहेगा, बस लास्ट में क्वेश्चन अगर जो पूछेगा उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करना पड़ेगा। क्या ये पार्ट क्लियर है? ओके, next question, if a and b are natural numbers such that a plus b is equal to 51, then what is the value of minus 1 to the power a plus minus 1 to the power b? And we know कि minus 1 का power, if the power is odd, result is minus 1, and if the power is even, तो रिजल्ट क्या आएगा? इवन के केस में रिजल्ट आएगा +1। बस इतनी सी तो बात है, और तो कुछ है नहीं। क्वेश्चन कह रहा है a प्लस बी इज 51, a प्लस बी है 51, 51 यानी कि क्या है? 51 इज अ ऑड नंबर, 51 तो ऑड है। ठीक है, तो जब तुम इसको दो पार्ट से ब्रेक करोगे, जब 51 को दो पार्ट से ब्रेक करोगे, किसी ऑड नंबर को दो पार्ट से ब्रेक करोगे, सो वन पार्ट विल बी इवन, वन पार्ट विल बी ऑड। देयर इज नो वे जिससे कि दोनों ऑड हो, दोनों पार्ट ऑड हो, देयर इज नो वे जिससे कि दोनों पार्ट हमारा इवन हो। एक पार्ट ऑड होगा, एक पार्ट इवन होगा, किसी भी तरह से ब्रेक करो। ठीक है, 1041 ले सकते हो, 546 ले सकते हो, 2130 ले सकते हो, कुछ भी वैल्यू लोगे, एक ऑड आएगा, एक इवन आएगा। यानी कि वन केस विल बी दिस वन, -1 टू द पावर ऑड, और एक केस आएगा -1 टू द पावर इवन। Isn't it so? तो अगर हमारा एक केस आया -1 टू द पावर ऑड, भाई या तो ए ऑड होगा या बी ऑड होगा, ठीक है, और एक केस आएगा -1 टू द पावर इवन, जो सम क्या आ जाएगा? ऑड वाले केस में -1 आएगा, इवन वाले केस में +1, सम विल बी इक्वल टू 0। सो इन ऑल केसेस आंसर विल बी ऑप्शन ए। सारे के सारे केसेस में ऑप्शन ए विल बी द आंसर, 0 विल बी द आंसर। क्या ये पार्ट क्लियर है? ओके, ये बात समझ में आती है। जस्ट इन केस अगर हमारा क्वेश्चन में 51 की बजाय 50 गिवन होता, 50 गिवन होता, तब फिर हमारे पास दो केसेस बन जाते, बिकॉज 50 क्या है? 50 इज इवन। सो इवन नंबर दो तरह से बना सकते हैं, इधर बोथ नंबर्स आर इवन और बोथ आर ऑड। एक इवन एक ऑड होगा नहीं, या तो दोनों ऑड होंगे या तो दोनों इवन होंगे। सो इफ बोथ आर ऑड, तो हमारा उस केस में क्या होगा? इफ ए एंड बी बोथ आर ऑड, दो केसेस होंगे, या तो ए कॉमा बी बोथ आर ऑड, सेकंड केस विल बी ए कॉमा बी बोथ आर इवन। सो इफ बोथ आर ऑड, ए एंड बी बोथ आर ऑड, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा? रिजल्ट विल बी -1 यानी कि -2, एंड इफ बोथ आर इवन, रिजल्ट विल बी +1 which is +2. So either result will be -2 or result will be +2, one of these two. So in that case answer would have been, 50 case में answer would have been option E, cannot be determined. Is that clear? ठीक है, सो अगर हमारा इवन नंबर होता सम, इन दैट केस आंसर वुड हैव बीन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बट अगर ऑड होगा सम, तो चाहे वैल्यू कुछ भी क्यों ना हो, आंसर विल बी ऑप्शन ए, आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Now the question is 16 to the power 2x minus 1 minus 8 to the power x plus 1, and that is equal to 3584. 16 to the power 2x minus 1 minus 8 to the power x plus 1, and that is 3584. 16 भी 2 की पावर में है, 2 to the power 4 है, 8 क्या है? 2 क्यूब है, तो लिख देते हैं 16 is 2 to the power 4, 2 to the power 4 to the whole power 2x minus 1 minus 2 to the power 3 to the whole power x plus 1, and this is equal to 3584. This is equal to 3584. So this becomes 2 to the power 4 into 2x minus 1 यानी कि 8x minus 4 minus 2 to the power 3x plus 3, and this is 3584. अब इस क्वेश्चन को करने का जो बेस्ट अप्रोच है वो तो ये है कि दोनों नंबर्स हमारे 2 की पावर में ही है, तो हिट एंड ट्रायल से देख लो 2 की कौन सी पावर को कौन सी पावर से सब्ट्रैक्ट करो कि रिजल्ट आए हमारा 3584। 2 to the power 5 is 32, 2 to the power 10 is 1024 which is 34 square, 2 to the power 12 is 2048 क्योंकि उससे भी बड़ा नंबर है, तो 2 to the power 13 को यूज करना पड़ेगा, 2 to the power 13 is 4096, और फिर यह है 3584 which is 512 लेसर, 512 लेसर, जो कि होता है 2 to the power 9। So if we subtract 2 to the power 9 from 2 to the power 13, तब हमें ये रिजल्ट ऑब्टेन होता है, तभी ये रिजल्ट ऑब्टेन होता है। सो बाय दैट लॉजिक दिस शुड बी 2 to the power 13 एंड दिस शुड बी 2 to the power 9, और अगर ऐसा है तो सेटिस्फाई करना चाहिए। 8x minus 4 शुड बी इक्वल टू 13, पावर्स को कंपेयर कर लो, तो 8x minus 4 शुड बी इक्वल टू 13। एक सेकेंड, 8x minus 4 है,
ठीक है, कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है क्या, 8x-4 आ रहा है और ये गड़बड़ किया ना, 2^12 होगा। भारी मिस्टेक हो रहा था। दिस इज 2^11 2048 और 2^12 4096। तो 2^12 इज इक्वल टू 8x-4, 8x-4 इज इक्वल टू 12, तो यानी कि x इज इक्वल टू 2 आ रहा है। बट वेरीफाई करो यहां से भी कि क्या x इक्वल टू सेटिस्फाई कर रहा है। 3x प्लस 3, x की जगह 2 पुट करोगे तो 3 इंटू 2 6 प्लस 3 9, तो यस दिस इज सेटिस्फाइंग एंड डेफिनेटली दिस विल बी द आंसर। ठीक है, डेफिनेटली दिस विल बी द आंसर, सो x विल बी इक्वल टू 2, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। क्या ये बात समझ पा रहे हो कि इजीली ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तरीका हम यही अप्लाई करेंगे, बट कन्वेंशनल मेथड को भी सीखना जरूरी है, क्योंकि किसी और क्वेश्चन में कभी ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि जहां पे कि हमारी पावर्स फ्रैक्शनल में आए, आंसर्स फ्रैक्शनल में आए, तो वहां पे ये मेथड डायरेक्टली फॉलो नहीं होगा। ठीक है, तो एग्जाम में कभी कोई ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसलिए हमें प्रॉपर मेथड भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो हमें इन एनी केस बनानी ही पड़ेगी। इसके बाद में कैसे प्रोसीड करेंगे ये समझते हैं। इसको सेपरेट पेज पे लिख लेते हैं। 2^8x-4 माइनस 2^3x+3 and this is equal to 3584। सो 2 की मैक्सिमम पावर को कॉमन लेते हैं और इतना कॉमन ले लेते हैं ताकि यहां पे 1 बच जाए। ठीक है, सो 2^3x+3 को हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, ये वाला पोर्शन तो निकालना पड़ेगा, दिस -1, दिस विल बी इक्वल टू 3584, 3584। ओके, नाउ वी नो कि ये नंबर तो हमारा 2 की पावर आएगा, इधर तो 2 की पावर आएगी, बट हम इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सो दिस विल बी ऑड, दिस विल बी ऑड। ठीक है, दिस इज इवन इनटू ऑड। तो 3584 को भी दो पार्ट्स में हम ब्रेक करते हैं, जिसमें से कि एक पार्ट में सारी 2 की पावर्स ले लेंगे और जो बच गया वो ऑड नंबर होगा, जो बच गया वो ऑड नंबर होगा। और जब सारी की सारी 2 की पावर्स एक साथ आ जाएंगी तो हम डायरेक्टली उसको कंपेयर करा लेंगे 2^3x+3 से। क्या ये अप्रोच समझ पा रहे हो? क्योंकि अगर इतना भी तुमने कर लिया उसके बाद फर्क ही नहीं पड़ता कि यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है, तो हम समझेंगे यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है। बट क्या ये बात समझ पा रहे हो कि डायरेक्टली हम 2 की जितनी पावर आ रही है 3584 में, उसको कंपेयर करा लेंगे 2^3x+3 से। इज दैट क्लियर? ठीक है, दिस व्हाट विल बी दिस वैल्यू, ये वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे हमारा 8x-4 टोटल पावर है 2 की, कॉमन लेने के बाद में 3x+3 सब्ट्रैक्ट कर दोगे 8x-4 में, तो 8x-4 -3x -3, सो दिस विल बिकम 5x-7। और ये तुम्हें बिना लिखे वैसे ही करना आना चाहिए, बट समझाने के लिए समझा रहा हूं कि अगर तुमसे शुरुआत में गलती होती है तो कैसे करना है, तो उस केस में ऐसे लिख के सॉल्व कर लो। ठीक है, उसके बाद में फिर पावर लिखो, क्योंकि गलती नहीं करनी है, हमें अपनी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, भले उसके लिए 2 सेकंड टाइम ज्यादा लग जाए। तो 2^5x-7 -1 हो गया। ठीक है, अब 3584 को ब्रेक करते हैं। कितना पावर 2 का इसमें से रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले 2 4 8 16, 16 से डिविजिबल तो लग रहा है, 16 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, कितनी बार जाएगा, तो 16 से डिवाइड करने में कितना बचेगा, दिस विल बी 16 इंटू 16 2 32, 38 बचा, 2 2 4, 2 2 4 बच गया, विच इज अगेन यहाँ पे फिर से 16 निकल आएगा, तो दिस विल बी 16 इंटू 16 इंटू 14, यानी कि 16 2 की पावर 4 हो गया, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 14 में भी आ गया 2 की पावर 1 इंटू 7, तो टोटल आ गया 2 टू द पावर 9, 4 + 4 + 1, 2 टू द पावर 9 इंटू 7। ठीक है, तो 3584 इज 2 टू द पावर 9 इंटू 7। अब 2 की पावर 9 को कंपेयर करा लो, बिकॉज 7 तो ऑड है। ठीक है, इससे कंपेयर करो 2 टू द पावर 3x+3 से। सो इन दैट केस 3x+3 दिस इज इक्वल टू 9 एंड हेंस 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 2 आ गया। बट लास्टली हमेशा एक बार वेरीफाई जरूर करो, इफ x इज इक्वल टू 2 तो 5x-7 कितना होगा, 10 - 7, 2 क्यूब, 2 क्यूब -7, तो 2 क्यूब -1 विच इज इक्वल टू 7। तो यस 7 यहाँ पे आ रहा है राइट हैंड साइड में, सो दस हमारा कैलकुलेशन एब्सोल्युटली करेक्ट है, आंसर इज x इक्वल टू 2। सो दिस इज द कन्वेंशनल मेथड। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, दोनों मेथड पता होने चाहिए। करेंगे हम क्वेश्चन को ऐसे ही, बट किसी किसी क्वेश्चन में इस मेथड की भी जरूरत पड़ सकती है। ओके, ठीक है, कैट PYQ जो आए हैं इस टाइप के, उनको हम बाद में करेंगे, कैट के जब क्वेश्चंस करेंगे। अभी फिलहाल कुछ वैरायटी कवर अप कर लेते हैं, बाकी और कुछ अच्छे क्वेश्चंस कर लेते हैं। नेक्स्ट वन, 30 टू द पावर 2x - 1 - 16 टू द पावर 2x + 3 इज इक्वल टू 8 टू द पावर 3x + 1। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। पॉज करो वीडियो को और अपने एंड पे सॉल्व करने की कोशिश करो। सो दिस इज 30 टू द पावर 2x - 1 - 16 टू द पावर 2x + 3 एंड दैट इज 8 टू द पावर 3x + 1। 32 यानी कि 2 टू द पावर 5 है, तो 2 टू द पावर 5 टू द पावर 2x - 1 माइनस 2 टू द पावर 4 टू द पावर 2x + 3 and that is equal to the power 3 to the whole power 3x + 1. So this becomes 2 to the power 10x - 5 minus 2 to the power 8x + 12
इज इक्वल टू द पावर 9x प्लस 3। इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम क्या है कि कहीं पे भी हमें कोई नोन वैल्यू गिवन नहीं है, सारी की सारी वैल्यूज में x अपनी जगह बना के रखे हुए है कि नहीं, सारी की सारी वैल्यूज में x अपनी जगह बना के रखे हुए हैं। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्या करें कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि 2 टू पावर 9x प्लस 3 को डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड पे, उससे एक वैल्यू हमें 1 मिल जाएगा। ठीक है, 2 टू पावर 9x प्लस 3 से डिवाइड कर देते हैं, दिस विल बिकम 2 टू पावर 10x माइनस 5 माइनस 2 टू पावर 8x प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 टू पावर 9x प्लस 3 एंड दैट इज इक्वल टू 1। ओके, सो अब इस पोर्शन को देखो, 2 टू पावर 10x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 टू पावर 9x प्लस 3, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा हमारा रिजल्ट आ जाएगा 10x माइनस 5 में से 9x प्लस 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10x माइनस 9x विल बी x और माइनस 5 माइनस 3 x माइनस 8 2 टू पावर x माइनस 8 माइनस, नाउ फोकस ऑन द सेकेंड पार्ट। एक सेकेंड, क्या हो गया, दिस पार्ट, तो माइनस 2 टू पावर 8x माइनस 9x यानी माइनस x प्लस 12 माइनस 3 माइनस x प्लस 9 तो 2 टू पावर 9 माइनस x and this is equal to 1. 2 to the power x minus 8 minus 2 to the power 9 minus x that is equal to 1. अब 2 की कोई दो ऐसी पावर्स हो सकती हैं जिनमें से एक को दूसरे से सब्ट्रैक्ट करो, रिजल्ट 1 आए। क्या ऐसी पावर्स को रिकॉल कर पा रहे हो? क्या इससे आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है कि 2 टू द पावर 1 में से 2 टू द पावर 0 को सब्ट्रैक्ट करो तो रिजल्ट 1 आ जाएगा? क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? 2 टू द पावर 1 में से 2 टू द पावर 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट हमारा 1 आ जाएगा, isn't it so? क्या ये बात समझ पा रहे हो? विच इंप्लाइज की ऑब्वियसली 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 है कि नहीं? 9 माइनस एक्स हमारा 0 हो जाएगा, और अगर 9 माइनस एक्स 0 है तो x इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, और x इक्वल टू 9 को पुट करोगे तो डेफिनेटली दिस विल बी 2 टू पावर 1 माइनस 2 टू पावर 0 एंड दैट विल बी इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 9 विल बी आवर सॉल्यूशन इन दिस केस। क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, x इक्वल टू 9 हमारा यहां पे सॉल्यूशन हो जाएगा। इज दिस क्लियर? क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, x इक्वल टू 9 विल बी सॉल्यूशन। जस्ट इन केस तुम्हें ये चीज नहीं क्लिक करती है, हालांकि ये क्लिक तो हमेशा ही करेगा, बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का और क्या तरीका हो सकता है वो भी सीखते हैं, वो भी समझते हैं। तो उसको सेपरेट पेज पे लेते हैं। 2 टू द पावर x माइनस 8 माइनस 2 टू द पावर 9 माइनस x इज इक्वल टू 1। अब यहां पे हम मान लेते हैं कि 2 टू द पावर x माइनस 8 लेट अस से इज इक्वल टू y। ठीक है, 9 माइनस x क्या है? 9 माइनस x को क्या हम लिख सकते हैं? दिस इज 1 प्लस 8 माइनस x, और x माइनस 8, ठीक है, 2 टू द पावर x माइनस 8 क्या है? y है। 8 माइनस x क्या है? दिस इज 1 माइनस x माइनस 8, ये तो वैल्यू हुआ। ठीक है, सो दिस कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर x माइनस 8 माइनस 2 टू द पावर 1 माइनस x माइनस 8 एंड दैट इज इक्वल टू 1, और 2 टू द पावर x माइनस 8 को y से रिप्लेस कर दो एंड दिस इज इक्वल टू y माइनस x। 2 divided by 2 to the power x minus 8 and that is equal to 1. So this will be y minus 2 upon y is equal to 1. अब ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी तो y स्क्वायर माइनस 2 is equal to y and hence y स्क्वायर माइनस y माइनस 2 is equal to 0. So y स्क्वायर माइनस 2y प्लस y माइनस 2 is equal to 0. तो y प्लस 1 into y माइनस 2 is equal to 0. तो दो सॉल्यूशन आएंगे, इधर y विल बी इक्वल टू माइनस 1 और 2, एंड नाउ सिंस y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x माइनस 2 की पावर है तो y कैन नॉट बी नेगेटिव, सो y विल बी इक्वल टू 2 टू द पावर x माइनस 8 विल बी इक्वल टू 2 टू द पावर 1, 2 यानी 2 की पावर 1, तो x माइनस 8 इज इक्वल टू 1, सो x विल बी इक्वल टू 9। क्लियर है? सो ये हमारा कन्वेंशनल मेथड हो गया सॉल्व करने का, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, बट ऐसे हम करेंगे बिल्कुल भी नहीं। हम डायरेक्टली जैसे ही ये चीज दिखेगा तो खट से हमें पता है कि 2 टू पावर 1 माइनस 2 टू पावर 0 वाला केस है, वाला सिनेरियो है, तो डेफिनेटली हम इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे और ऐसे ही हमारा ये क्वेश्चन फट से फिनिश हो जाएगा। क्लियर? हालांकि इस क्वेश्चन को करने का एक और मेथड है जो इससे भी प्यारा है, और उस मेथड को भी सीखते हैं साथ में, उसको भी साथ में ही सीखते हैं और उसको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई भी करेंगे। देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, वो ये है, फॉर एग्जाम्पल हमने 2 के स्क्वायर में से 2 की पावर 1 को सब्ट्रैक्ट किया, 2 स्क्वायर में से इफ वी सब्ट्रैक्टेड 2 टू द पावर 1 तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा? रिजल्ट विल बी 4 माइनस 2 which is 2 to the power 1 only, isn't it so? If we subtract
2 square from 2 cube. 2 cube is 8, 2 square is 4, 8 minus 4 is 4, which is again 2 square. 2 to the power 4 में से 2 cube को subtract करें, so this will become 16 minus 8, which is 8, which is again 2 cube. और in general 2 to the power n minus 1 में से n में से if we subtract 2 to the power n minus 1, ठीक है, या फिर 2 to the power n plus 1 में से अगर हम 2 to the power n को subtract करें तो रिजल्ट आएगा 2 to the power n. क्यों आएगा? बिकॉज जैसे ही तुम 2 to the power n कॉमन लेते हो लेफ्ट हैंड साइड में, अंदर बच जाएगा 2 minus 1, which is equal to 1 only, so this is 1 into 2 to the power n. That is why 2 to the power n plus 1 minus 2 to the power n is equal to 2 to the power n. और यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि this is also in power of 2, this is also completely in power of 2, this is also completely in power of 2. 2 के अलावा कुछ भी नहीं है, तो डेफिनेटली दिस इज द केस. डेफिनेटली ये वाला केस है जिसको हमें डायरेक्टली अप्लाई करना है. क्या ये बात समझ पा रहे हो? तो बस अब हमें क्या करना है, क्या वैल्यू बन जाएगा 2 to the power 5 था, तो 5 into 2x minus 1 यानी 10x minus 5 minus 2 to the power 4 into 2x plus 3 यानी कि 8x plus 12 is equal to 2 to the power 9x plus 3. Now 2 to the power n plus 1 minus 2 to the power n is equal to 2 to the power n, यानी कि ये दोनों वैल्यूज हमारी 2 to the power n ही होगा. These two should be equal. ये पावर्स हमारी इक्वल होनी चाहिए, यानी कि 8x plus 12 will be equal to 9x plus 3. So that implies that x is equal to 9. तो सॉल्यूशन हमारा खट से यहीं से आ गया, x equal to 9. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, वेरीफाई करना हो तो देख सकते हो x equal to 9 पे ये वैल्यू क्या आएगा, ये पावर हमारी कितनी आएगी, दिस विल बी 9 to 9 81 plus 3 84, 2 to the power 84 आ गया. और ये वैल्यू क्या आएगा, 2 to the power 10x minus 5 था, यानी कि 90 minus 5, तो 2 to the power 85 आ गया, which is 84 plus 1. तो दिस इज 2 to the power n, दिस इज 2 to the power n plus 1. तो यस वेरीफाई भी हो रहा है. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, ओके. ये तो केस हो गया 2 के लिए, बट 2 के अलावा किसी और क्वेश्चन, किसी और नंबर की पावर हो तो, अगर हम 3 में ये सेम चीज करना चाहें तो 3 to the power n plus 1, 3 to the power n plus 1 में से इफ यू सब्ट्रैक्ट 3 to the power n, तो रिजल्ट क्या आएगा, 3 to the power n को कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 3 minus 1. So this will be 2 into 3 to the power n. 3 to the power n plus 1 minus 3 to the power n will be equal to 2 into 3 to the power n. Or better, if we subtract 3 to the power n plus 1 में से 2 into 3 to the power n को सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्ट आएगा 3 to the power n. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, सो रिजल्ट हमारा आ जाएगा 3 to the power n. Isn't it so? क्लियर? ठीक है, तो उस केस में फिर रिजल्ट आ जाएगा 3 to the power n. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 125 to the power x minus 1 minus 4 into 5 to the power 2x minus 1 is equal to 3125. अब यहां पे अगर हम सेम प्रिंसिपल अप्लाई करना चाहें, अपना प्रीवियस क्वेश्चन वाला सेम प्रिंसिपल अप्लाई करना चाहें, ठीक है, बिकॉज यहां भी दिस इज ऑल इन पावर ऑफ 5, दिस इज पावर ऑफ 5, ठीक है ना, 5 to the power 5 है ये, 3125 क्या है, 5 to the power 2 is 25, 5 to the power 4 is 625 and 5 to the power 5 is 3125. तो ये 5 की पावर 5 है. दिस इज ऑल्सो 5 की पावर, दिस इज ऑल्सो इन पावर ऑफ 5, दिस इज ऑल्सो इन द पावर ऑफ 5. सो यही सेम चीज अगर हम 5 की पावर में करना चाहें, 5 to the power n plus 1 minus 5 to the power n, take 5 to the power n as common, तो रिमेनिंग बच जाएगा 5 minus 1. So this becomes 4 into 5 to the power n, 4 into 5 to the power n. Isn't it so? ठीक है, 4 into 5 to the power n बच गया, और यहां पे आ तो रहा है 4 into 5 to the power n, या इन जनरल कहेंगे 5 to the power n plus 1 में से अगर हम 4 into 5 to the power n को सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्ट आ जाएगा 5 to the power n. ठीक है, इसको याद नहीं करना है, समझना है, इसलिए मैं तुम्हें पूरा अप्रोच समझा रहा हूं. ठीक है, कि ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा और इससे तुम फिर ये डिड्यूस कर सकते हो रिजल्ट. 5 to the power n plus 1 minus 4 into 5 to the power n is equal to 5 to the power n. क्लियर है? अब यहां पे डायरेक्टली अप्लाई कर दो, तो 5 to the power 3x minus 3 minus 4 into 5 to the power 2x minus 1 is equal to 5 to the power 5. So this should be equal, 2x minus 1 should be equal to 5. तो 2x minus 1 is equal to 5 है, so x will be equal to 3. बट लास्ट में चेक जरूर करो, x equal to 3 पे ये क्या वैल्यू आएगा, दिस इज 3x minus 3, यानी कि दिस विल बी 6, तो ये वैल्यू आएगा 5 to the power 6, और ये है 5 to the power 5, तो यानी कि n plus 1, n and n plus 1, yes that relationship is matching, तो डेफिनेटली हमारा जो सॉल्यूशन है दैट इज करेक्ट. क्लियर? ओके, क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इफ 3 to the power x plus 1 plus 4 to the power y minus 1 is equal to 73
and 4 into 3 to the power x plus 3 into 4 to the power y minus 2 is equal to 60, then find x plus y. very 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 easy question. ये तो बहुत ही आसान सवाल है. 3 to the power x plus 1 plus 4 to the power y minus 1 is equal to 73. बस तुम 3 की वैल्यूज को पुट करके देखो, 3 की पावर्स को पुट करके देखो. 3 स्क्वायर कितना आता है? 9. 3 क्यूब इज 27. 3 to the power 4 is 81. तो डेफिनेटली 3 to the power 4 से कम वैल्यू होगा. 4 स्क्वायर इज 16. 4 क्यूब इज 64. 9 प्लस 64 कितना आएगा? 73. तो बस यही वैल्यू होगा. दिस विल बी 9, दिस विल बी 64. दिस इज 9, दिस इज 64, क्योंकि यहां पे 4 इंटू 3 पावर एक्स है प्लस 3 इंटू 4 टू द पावर y माइनस 2 है. दैट इज वाई हमने यहां पे किया, क्योंकि यहां पे प्योर पावर्स है, अप्लाई करना ईजी है. और जैसे ही आप कंपेयर कर लोगे, दिस इज 3 स्क्वायर, 9 क्या है? 3 का स्क्वायर. दिस इज 4 क्यूब. तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 एंड हेंस x इज इक्वल टू 1 एंड y माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 4. लास्टली यहां पे वेरीफाई जरूर करो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है. तो 4 इंटू 3 टू पावर x यानी 4 इंटू 3 टू पावर 1 प्लस 3 इंटू 4 टू पावर y माइनस 2 यानी 4 स्क्वायर. तो 4 इंटू 3 12 प्लस 3 इंटू 16 यानी 48. सो यस, दैट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 60. तो आंसर हमारा आ जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 5. दिस इज इक्वल टू 5. क्लियर? देखो, करना हमेशा हमें इन्हीं तरीकों से है, बट कन्वेंशनल मेथड भी पता होना चाहिए. तो हम अब इसके बाद में ये भी सीखते हैं कि कन्वेंशनल इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते थे, हम कैसे सॉल्व कर सकते थे और क्या तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हो सकता था. ओके, ठीक है. देखो, 3 टू पावर x प्लस 1 प्लस 4 टू पावर y माइनस 1 इज इक्वल 73. तो 3 टू पावर x प्लस 1 हो जाएगा हमारा 73 माइनस 4 टू पावर y माइनस 1. तो यहां से 3 टू पावर x प्लस 1 यानी 3 टू पावर x इंटू 3 है ये. ठीक है. सो 3 टू पावर x की वैल्यू क्या आ जाएगा? 3 से डिवाइड कर दो. 3 से डिवाइड कर दो पूरे एक्सप्रेशन को. तो 3 टू पावर x विल बी इक्वल टू 73 माइनस 4 टू द पावर y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3. अब इस वैल्यू को 3 टू द पावर x की जगह पे रिप्लेस कर दो इस सेकंड इक्वेशन में. तो 4 इंटू 73 माइनस 4 टू द पावर y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 इंटू 4 टू द पावर y माइनस 2 इज इक्वल टू 60. अब पूरे एक्सप्रेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें. 3 से मल्टीप्लाई करते रिजल्ट क्या आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा 4 इंटू 73 माइनस 4 टू द पावर y माइनस 1 प्लस 9 इंटू 4 टू द पावर y माइनस 2 इज इक्वल टू 180. 4 इंटू 73 इज 292. 292 माइनस 4 इंटू 4 टू द पावर y माइनस 1 यानी कि 4 टू द पावर y आ गया प्लस 9 इंटू 4 टू द पावर y माइनस 2 इज इक्वल टू 180. 292 माइनस 180 आ जाएगा 112. 112 तो 9 इंटू 4 टू द पावर y माइनस 2 माइनस 4 टू द पावर y इज इक्वल टू 112. ओके, ठीक है. कुछ गड़बड़ हो रहा है ना यहाँ पे. 4 टू द पावर y माइनस 2 तो ठीक है. कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ हो. हाँ, ये ऑपोजिट होगा ना, ये -112 आएगा यहाँ पे, -112 आएगा. ठीक है, -112 आएगा. सो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 टू द पावर y माइनस 9 इंटू 4 टू द पावर y माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 112. अब 4 टू द पावर y माइनस 2 को कॉमन ले लो तो अंदर बच जाएगा 4 टू द पावर 2 विच इज 16 माइनस 9 एंड दैट इज इक्वल टू 112. 16 माइनस 9 कितना है? 7 है. 7 है. तो 4 टू द पावर y माइनस 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 112. 7 से 16 टाइम्स आएगा तो 4 टू द पावर y माइनस 2 इज इक्वल टू 16 और y माइनस 2 क्या होगा? दिस इज 4 स्क्वायर. तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू 4 आ गया यहाँ से. जैसे ही y इज इक्वल टू 4 आएगा पुट कर दो इस इक्वेशन में. तो यहाँ से हमें y इज इक्वल 4 पे वैल्यू क्या मिल जाएगा? 3 टू पावर x विल बी इक्वल टू 73 माइनस 64. 4 क्यूब यानी 64 बाई 3. सो दैट इज इक्वल टू 3 विच इज 3 टू पावर 1 यानी x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा. ठीक है, थोड़ा सा हौच पौच लग रहा होगा बट आई बिलीव अपने एंड पे एक बार कन्वेंशनली वैसे ही सॉल्व करोगे जैसे मैंने किया है तो तुम्हें बातें समझ में आ जाएंगी. क्लियर है? x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 4 आ गया. बट हमें ऐसे बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है, हमें इसी मेथड से सॉल्व करना है. डायरेक्टली वैल्यूज दिख रही हैं तो क्यों नहीं सॉल्व करेंगे ऐसे. ओके, बट पता जरूर होना चाहिए हमेशा. जो तरीके अप्लाई नहीं भी करने हैं इन जनरल उनको भी पता जरूर होना चाहिए और साथ में सॉल्व करके भी एक बार अपने एंड पे कंफर्टेबली देख लेना है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b इफ 3 टू पावर 5 3 इंटू 5 टू द पावर a प्लस 2
to the power b plus 2 is equal to 107 and 5 to the power a plus 1 plus 8 into 2 to the power b that is 189. तो यहाँ पे कौन से एक्सप्रेशन पे ट्राई करोगे ये बताओ, पॉज करके सोचो कौन से एक्सप्रेशन पे ट्राई करोगे। देखो सेकंड वाले एक्सप्रेशन में क्या है, 5 टू द पावर a प्लस 1 है प्लस 8 तो 2 के पावर में ही है, 8 इंटू 2 पावर b यानी कि ये पूरा का पूरा 2 के पावर्स में है, तो सम आ रहा है 189, तो इसी पे ट्राई करेंगे। ठीक है, 5 की पावर्स क्या है, 5 25 125 और 2 की पावर्स हो जाएंगी, 2 में देखो तो 2 4 8 16 32 64, क्लियरली ये वैल्यू दिख रहा है। 125 में अगर 64 ऐड कर दोगे तो 189 आ जाने वाला है। ठीक है, 189 आ जाने वाला है, यानी कि दिस इज 125 एंड दिस इज 64। 125 इज 5 टू द पावर 3, सो a प्लस 1 इज 3 यानी कि a इज इक्वल टू 2 आ गया, और 64 इज 2 टू पावर 6 बट 8 इंटू 2 पावर b है यानी 8 इंटू 8 है, तो दिस इज 8 इंटू 2 क्यूब यानी कि b इज इक्वल टू 3 आ गया। a इज इक्वल टू 2 b इज इक्वल टू 3, तो a प्लस b विल बी इक्वल टू 5। लास्टली हमेशा वेरीफाई जरूर करो, अब यहां पे पुट करके देख लो तो 3 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर b 3 था तो 2 टू द पावर 5 आ गया, सो दिस विल बी 3 इंटू 25 प्लस 32, so that will be equal to 75 plus 32 यानी कि टोटल सम आ जाएगा 107। तो यस दिस इज मैचिंग, वेरीफाई कर रहा है, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, इतना ही रखते हैं इस सेशन में, चलो इतना ही रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रनिंग।